Yeah. So good morning, everyone. Iman, Khadija, how was your FM paper? Ma'am, the theory was very easy while calculation was a bit difficult, and section C was easier than expected. Okay. And how about Iman? Iman, we pronounce your name as Iman only, na? Or how? Am I right? Yes, ma'am. That's how you say it. Okay. Yeah, the paper was good. It was okay. Okay. ठीक है. So let's start with SBR. Let me give you a quick introduction of SBR paper. So see, SBR is advanced paper of FR. You all know that. ठीक है. It includes these topics like IFRS's conceptual framework. Now, conceptual framework is very important in SBR. We didn't pay any attention, like not much of attention to conceptual framework in FA और FR, है ना. थ्योरी में आता है थोड़ा बहुत, MCQs आते हैं and then we are done. But SBR में conceptual framework is like one of the very important topics. So how conceptual framework is tested? Basically, you have to know the connection between each and every IFRS and conceptual framework. So if we are studying IFRS 16, IAS 16, property, plant and equipment, depreciation and all. So you have to know, you have to be perfect in knowing like what are the requirements of IAS 16, what are the requirements of conceptual framework, and whether they both are on the same page or not. Meaning what conceptual framework says, does IAS 16 also say the same thing? हाँ, रूल्स बेस्ड एंड प्रिंसिपल बेस्ड वो बहुत छोटा सा पार्ट है थ्योरी का. हाँ, conceptual framework is also on similar lines. ठीक है. So हर एक IS 37 and conceptual framework, whether they are in agreement or conceptual framework says something different and IS 37 says something different. For like this, you have to know the connection between every IS, IFRS and conceptual framework. हर एक IFRS IS का कनेक्शन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ एकदम क्लियर होना चाहिए. बिकॉज एग्जाम में यू नेवर नो के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कौन से IFRS के साथ पूछेंगे वो लोग. ठीक है. करंट इश्यूज एक बहुत हॉट टॉपिक है. एक ही चैप्टर होता है इस पे करंट इश्यूज पे, बट इसमें से मोर और लेस हर बार पेपर में कुछ ना कुछ आता ही है. देन वी हैव एथिक्स हियर आल्सो. नाउ for those students for whom this is the first P level paper, Iman and Khadija, Avanti, it's a huge jump from your skill levels. तो स्किल लेवल में जितना पढ़ाई करते थे इसमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है. एंड नाउ सम्स डोंट कम. इवन इन SBR देयर आर वेरी मिनिमल और नो कैलकुलेशंस एक्सेप्ट कंसोलिडेशन. बाकी सारे IFRS में कैलकुलेशंस हैं बहुत बहुत कम है. इट्स मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज एप्लीकेशन. थ्योरी में पढ़ो और उसको अप्लाई करो. Okay, then there is consolidation, analysis and interpretation, but interpretation is not FR level. This is a much higher level of interpretation. रेशियो कैलकुलेशन नहीं आता, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं आता. आता है बहुत रेयरली कभी तो, बट अदरवाइज इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन. ओके. एंड इंटरप्रिटेशन भी क्या मतलब, रेशियो से ऊपर जाके एक लेवल देयर इज एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स लाइक EBITDA, फ्री कैश फ्लोज, अलग अलग तरह के मेट्रिक्स होते हैं जो कंपनीज अपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए सिलेक्ट करती है, तो हमें उन्हें इंटरप्रेट करना होता है. सो दिस इज द सिलेबस काइंड ऑफ थिंग. IFRS हो गया, सारे IFRS, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, करंट इश्यूज, एथिक्स, group accounts and analysis and interpretation. Ethics still remain the same. Ethics is same throughout ACCA. जो तुमने ऑडिट में पढ़ा, SBL में पढ़ा, स्टिल एथिक्स इज द सेम, बट नाउ फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो SBR starts where FR ends. So FR का knowledge is assumed कि you know FR very well. So what we will do for that matter, I don't know how long you all have given FR, है ना, how long back. हाँ, तो काफियों का, अवंती का जैसे काफी पुराना है FR. आई डोंट नो अबाउट ईमान एंड खदीजा, बट FR का नॉलेज इज अज्यूम्ड कि तुम्हें FR आता है अच्छे से. सो व्हाट वी विल डू, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर, दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव एनीथिंग. अदरवाइज हर रोज नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मेरा FR का रिकॉर्डिंग वो चैप्टर का देख के आना पड़ेगा. अदरवाइज यू विल बी लाइक लॉस्ट इन द क्लास. तुम्हें कुछ, बिकॉज मैं FR नहीं पढ़ा सकता.
SBR में. If I start from FR, we are never going to end the syllabus. कितने घंटे का ये रिकॉर्डिंग है? FR का 2 घंटा. अब वो तुम फास्ट फॉरवर्ड करके देखो या कैसे, मतलब लीज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो तुम्हें FR का लीज रिवाइज करके आना है. बिकॉज वो क्लास में थोड़ा बहुत रिपीटेशन होगा, but I can't expect myself to teach full FR, you know, it will become difficult. So FR knowledge is assumed. So before we start any chapter, I'll add you all to my previous FR team. और वहां पे I think I have named all the lectures. Just a second. FR का मेरा last September 22 ही हुआ है शायद. Yeah, so lectures are named: revenue, IFRS 15, IAS 8, inventory, ठीक है, tax, IFRS 9, whatever chapters, I will add you all to this team. So whenever we are about to start a new chapter, you will, sometimes if I forget to say, still you have to watch the chapter and come. ठीक है, so वो नहीं करोगे तो फिर you will not get the grasp on SBR. ठीक है, okay. So I'll add you all and you have to watch the recordings before we start the new chapter. पेपर पैटर्न SBR का, there are section A and section B. Section A में consolidation आता है 30 marks का, but it is not FR kind of consolidation where you have to make consolidated P&L and consolidated balance sheet. Here it is more of explanations. Calculation कम होते हैं. Goodwill, अगर if they are giving you goodwill calculation in let's say 8 marks, तो 8 में से ना 2 या 3 मार्क खाली कैलकुलेशन के रहेंगे, बाकी 5 मार्क थ्योरी के. So it's all about you have to explain each and every number के goodwill calculate कैसे करते हैं, उस पे theory लिखो, net assets कहाँ से लाते हैं, उसमें क्या क्या include होता है. So it's more of theory, more of application. 30 marks में I would say there will be hardly 7 to 8 marks for calculation. Remaining 20 to 23 marks are all writing for explanations. So group section A में first question is always consolidation 30 marker. Adjustments again. कंसोलिडेशन का हर एक एडजस्टमेंट एक IFRS होगा. अगर 5 एडजस्टमेंट हैं सब में, तो 2 एडजस्टमेंट कंसोलिडेशन के रहेंगे, तीसरा एडजस्टमेंट हो सकता है लीज में से हो, फिर एक रेवेन्यू में से हो, एक IAS 37 में से हो. सो वैसे करके सम बनता है. So, but you will never be asked to prepare a full consolidated P&L or balance sheet. That is not part of SBR. Because see, तुम प्रैक्टिकली भी जाओगे, तुम्हें फिगर्स ही इनपुट होते हैं. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो सॉफ्टवेयर बना के देता है ना. सो द objective is not to test you on making full consolidated P&L or balance sheet. Objective is you know how to calculate every figure. Okay. Second question is always reporting and ethical implications. This is for 20 marks always. इसमें क्या होगा ना, अकाउंटेंट कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा, लाइक IAS 37 कुछ बोलता है लेकिन अकाउंटेंट कुछ और ही कर रहा है, तो तुम्हें वो चीज पकड़नी होगी, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी होगी, और एथिकली अकाउंटेंट कहाँ रॉन्ग जा रहा है. अगर उसे पता ही नहीं है कि IAS 37 बोलता क्या है, मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ. Ideally, if you are ACCA, you are CA, you are accountant, so you have to be thorough with your IFRSs and IASs. तुम्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए. तुम बोलोगे मुझे पता ही नहीं IAS 37 में क्या है, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना. या फिर तुम्हें पता है कि प्रोविजन कैसे बनाना है, लेकिन तुम्हारा बोनस बहुत इंपैक्ट हो रहा है, इसलिए तुम प्रोविजन का अमाउंट कम कर दे रहे हो ताकि P&L पे हिट ना आए, है ना. तो उस केस में भी इंटीग्रिटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट. So second question is always on some IFRS plus ethics, but हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई IFRS ना हो, कोई और ही टॉपिक के साथ एथिक्स रिलेट करे, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग रिलेटेड होगा उस. ठीक है. सो टू SBL पेपर इज 100 मार्क्स में से 96 मार्क्स टेक्निकल, 4 मार्क्स प्रोफेशनल, जो हमारा SBL में 20 मार्क्स था. सो SBR पेपर हैज एज ऑफ नाउ 4 प्रोफेशनल स्किल मार्क्स. तो 4 प्रोफेशनल स्किल मार्क्स में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, दैट आई विल एलैबोरेट व्हेन वी कम टू द चैप्टर. ठीक है. फिलहाल तुम्हें इतना याद रखना है सिर्फ के 96 मार्क्स आर फॉर टेक्निकल स्टफ, 4 मार्क्स आर प्रोफेशनल स्किल मार्क्स. अपना स्केप्टिसिज्म, इवैल्यूएशन, वो सब था, वो नहीं है. यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डिस्कशन होता है कि तुम्हारा आंसर का क्वालिटी कैसा है.
ओके अच्छा लाइक हाँ जो सब में था कि दिस विल रिप्रेजेंट स्केप्टिसिज्म हाँ, एक मार्क होता था हाँ, 4 में से वैसा 2 में से sorry. दो में से. So there are 4 professional skill marks that we'll discuss later when we come to those questions. Section B में there are 2 questions of 25 marks each. इसमें तुम्हारे बाकी के सारे IFRS, conceptual framework, current issues सब इधर टेस्ट होता है. Okay, so this is the paper pattern. Question 1 30 marks, question 2 20 marks, mostly related to ethics and groups. Question 3 and 4 is mixed IFRSs and current issues and everything, analysis, interpretation, 2 questions of 25 marks each. These are not only 4 questions because these 225 markers are, there are many subparts, 3 or 4 subparts of 7 8 marks. वैसा होता है. Both the questions are like that. Even यहाँ पे भी subpart हो सकता है 20 marks में. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि 25 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं होता है. वो सिर्फ पहला होता है, ग्रुप अकाउंट्स 30 मार्क्स. बाकी क्वेश्चन 2 3 4 ऑल एवरी क्वेश्चन हैज सम और अदर सब पार्ट्स. So batch will be Monday to Saturday, 2 hours every day. My target is to finish by 10th May. ठीक है? 2 mocks of 100 marks. Mocks date are 25th May and 1st June. Okay, so you have to be regular with your attendance at home, what all you are doing. If I'm going forward after 4 or 5 classes, if I'm doing, you have to revise what we are doing in the class. You have to watch that, you have to prepare for the next day. You have to watch the FR recording and come. You have to you have to do the homework also, what we will be doing, what I will be discussing in class. Okay, and you will be preparing for test also. After every 4 or 5 chapters, what test we have. So you will be preparing for that test also. So too much to do, but don't worry. जिनका पहला P level है, you will take some time to get hang of P levels. Okay, because P level is a huge jump from F level. SBL is, so Shreyans is asking what is the difference between SBL and SBR. SBL is more of every corner of business, strategy, governance, risk management, internal control. This is pure accounting. This is more technical. Yeah, this is more technical. Accountant point of view, journal entries कैसे pass करोगे, balance sheet कैसे बनेगा, P&L कैसे बनेगा, क्या treatment होगा हर एक item का, pure accounts. This is IFRS. Okay. So yeah, this is the batch timetable, Monday to Saturday. Timing will be 10 to 12 only. ठीक है? Okay. Yeah. So Kaplan text and Kaplan exam kit we will be following. Now the beauty of Kaplan exam kit is it has covered almost all past papers in the exam kit. See, last 8 past paper covered है. क्यों? तुम्हारे इधर क्यों नहीं आ रहा? Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 last 8 past papers are covered in the exam kit only. So SBL mein what we did was every day you referred one past paper because SBL mein we can't cover past papers in exam kit, है ना? But here it is nothing like that. Half of, I mean almost 8 past papers are covered in Kaplan exam kit. So we'll be doing this. Now if you see, अच्छा SBR has 2 versions, huh? One is SBR International, one is SBR UK. We are doing SBR International. So when booking exam, please be careful that you book SBR International exam. So we will not be doing these questions because these are UK gap. Okay, so we have to do till question 64, and these are not only 64 because every question has 3 to 4 subparts. So group accounts छोड़ दो अगर group accounts में कितने हैं? There are 20 questions on group accounts. 20 को छोड़ के 64 में से 44 on an average if you consider 3 subparts for every question, 44 into 3. है ना? We have some 132 or something like questions to be done in the class. Now another thing is कोई भी subpart उठा लो, एक अकेले IFRS पे नहीं मिलेगा. Very rare.
like IFRS कुछ हैं जहाँ पे आ जाते हैं individual questions, but majority of the questions are a mix of 2 to 3 IFRS. So I prepare an index like this because I can't follow Kaplan exam kit ka index. So this is the detailed exam kit ka index which I will be sharing with you all. Now if you see this question, this has got conceptual framework and IAS2. तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ा करूं. Good. ठीक है. If you see this has got conceptual framework and IAS2. यहाँ पे IAS2 37, 9, IAS8. 4 IAS IFRS मिला के एक क्वेश्चन बना है. Again 16, 36, IAS2, IAS37. Exam kit questions है क्या? हाँ? Exam kit questions. Yes. These are exam kit questions. ठीक है. This is question like 45 of the exam kit fill. Again, this is a past exam question. So देखो एक question में 4 सब parts है. 7 marks, 8 marks, 10 marks. I don't know. I've written. हाँ? So we have to go by this. This is old index. I forgot to update the number. I have updated the number here only. Day before yesterday I was updating. So this is Purane index exam kit ka number, but right now it's 45. But you see, so I cannot take this question unless I finish these 4 IASs. है ना? जब तक ये 4 खत्म नहीं होते क्लास में तब तक मैं start ही नहीं कर सकती ये question. So majority of the questions will be like this. There are questions like this which are solely based on one IFRS, but exam में काफी बार mix and match करके आता है. So we will not be touching exam kit unless I finish 6 chapters. Okay? तब जाके हमें कुछ questions मिलेंगे जो हम attempt कर पाएंगे. So after finishing these 6 chapters or 5 chapters, we will be able to start exam kit. Luckily there are no demo students. You all are confirmed students. Otherwise पहले 5 lecture में demo मिलना मुश्किल है. Because you don't get the feel of the class. हाँ, exam kit तब तक start ही नहीं होगा. 5 क्लास में तो ठीक है. So yeah, one is this exam kit related. Then what else? Yeah, regular test will be taken. So be ready to muck up again after audit. So SBR unfortunately has some mugging up because कोई भी question जब आता है exam में, you are expected to write the text from IFRS. So IAS 16, I'll slowly and gradually you will understand this, but you have to learn the text of IFRS. If I ask you आधी रात को भी नींद में से उठा के पूछूं IAS 16 का recognition criteria बताओ, तो वो याद होना चाहिए. What is the recognition criteria under IAS 16? What is the recognition criteria under conceptual framework? What is recognition criteria for IAS 37 provision? How do we calculate value in use? So you know you have to mug up a few things because exam में यहाँ पे theory लिखने के marks होते हैं. SBL में theory लिखने के marks बिल्कुल नहीं थे. यहाँ पे theory लिखने के बहुत marks मिलते हैं. अगर तुम IFRS IAS का text नहीं लिख पाते तो marks कट हो जाते हैं. तुम्हें text learn करना पड़ेगा. Okay? So yeah, SBA syllabus is very vast and technical. So vast matlab towards end always like every exam you will feel के syllabus खत्म ही नहीं हो रहा है. So it's very vast, too many things to be done. This I already told you, there are few calculations. It's all application based. ठीक है? So this is the introduction to paper from my side. If you have any questions, let me know. तुम्हारे पास कोई questions है तो बताओ. So Iman, Khadija, Avanti, as I said, it's first time for you. Still, there are many students in the batch for whom it is first time. Everyone will come slowly. College ke exams chal rahe. So you guys will take little time to get a hang of P level, but you do not have to lose your patience. हाँ, दीक्षा का आज SBL exam दे रही है. हाँ, अभी तो 10 ही है. So yeah. Last year, paper was easy, and I am feeling I just missed something. Yeah. So please be regular with your attendance. Try not to miss any classes because SBR में नहीं, कोई भी P level में एक class miss करना is missing too much.
So then it becomes difficult to catch up because you know तुम्हें FR का recording होगा, तुमने क्लास मिस किया वो recording होगा, तुम्हें होमवर्क करना होगा, और एक बार बैकलॉग आ जाता है ना फिर कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। और SBR के बैच में कोई छुट्टी नहीं आ रही बीच में लंबी वाली। It will be a continuous batch now till 10th May. 1 or 2 leaves here and there if something comes up for me or something बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाता है, बहुत ज्यादा पाइलिंग अप हो जाता है, तो I can give a 2 days का छुट्टी for you all on a common for the batch to cover up, है ना? So try to be regular with your classes and try to be regular with homeworks and all. ठीक है? Any questions? Otherwise, Ma'am, so like this is like when in exam it's like audit. We just have to type in everything in the Word. Is it like that? yes. Okay. Thank you, ma'am. Wherever there are calculations, you can use Excel. Like goodwill का calculation पूछा है तो वो Word में नहीं कर सकते, तो Excel sheet होता है. Okay, so you are given the Excel sheet. You have to do your calculations in the Excel sheet and give references in the Word sheet. Okay, for goodwill calculation, refer the spreadsheet. Okay, but yeah, use of Excel is very limited in SBR. It's all Word पे ही typing होता है. Okay, so yeah, होते हैं calculations question 1 में of course होते हैं. काफी बार लीज का कुछ आता है या IFRS 2 पे कुछ आता है तो calculations होते हैं. So calculations are there but very limited. और बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं, सो एक्सेल बहुत कम यूज होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज ऑन वर्ड. ओके, या एनीथिंग एल्स? Otherwise, let's start with the syllabus now. We'll start with chapter 1. So chapter 1 is conceptual framework. So chapter 1 has two things, conceptual framework and IFRS 13. अब conceptual framework ना पहले तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग को क्या याद है, क्या था conceptual framework? Shreyans is giving me chapter 6, 7, FR का chapter number of Kaplan. Yeah. Anything you all remember about conceptual framework? Okay, let me get a quick thing. Conceptual framework is used to modify and define IFRS to Yeah. Good. Yes. So you gave your paper in December, मतलब very recently. FR. Iman, when did you give your FR paper? I think it was last year. Last year. Okay, Khadija. अब सबके लिए last year तो होगा ही ना. This is 23, so 22 में ही दिया होगा सबने. Yes, ma'am, it was last year. Okay, Hiral, how long for you? 21. 21. तो हिरल ने तो बहुत पहले दिया है. ठीक है. Yeah. So Hiral, you have to be like pretty regular with watching FR recordings, huh? हाँ मैम, मैंने ब्रेक Yes. ली थी ना बीच में आफ्टर माय यूनी हाँ. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उसकी वजह से. Yeah, chalega. So please be regular with watching FR recordings. So conceptual framework, as Shreyans rightly said, it is used to develop new IFRS. है ना? एक तो वो होता है. So it is a basically it is a set of theoretical principles and concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements. अब देखो IASB को जब IFRS या ये बनाने थे, पहले तो ना मुझे बताओ कि आइडेंटिफाई कैसे होता है कि एक IFRS बनाना है. IASB को पता कैसे चलता है कि चलो एक नया IFRS बनाना है? ऑफ कोर्स जब ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, इन सबको कुछ जैसे क्रिप्टो है ना, अभी क्रिप्टो कितना आ गया है, लेकिन क्रिप्टो अगर क्रिप्टो में पेमेंट आ रहा है या हम क्रिप्टो में पेमेंट ले रहे हैं, कुछ आ रहा है, क्रिप्टो को रिकॉर्ड कैसे करें? मतलब डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करना है वो हमें IAS 16 बताता है, तो हमें पता है कि चलो IAS 16 जो बोलता है वो कर दो और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर दो. क्रिप्टो को अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करें? कोई IFRS, कोई IAS नहीं है. तो जब कोई IAS IFRS नहीं होता है ना, सबसे पहले बना था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क.
तो अब ऑडिटर्स अकाउंटेंट्स क्या करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो पे कोई IFRS या ये नहीं है, वो लोग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या बोलता है, कोई भी असेट कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए या कोई भी इनकम कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो एक तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का यूज उधर होता है जब कोई IAS IFRS नहीं होता, तो उधर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का हेल्प लेना पड़ता है हमें। अनदर थिंग, अब अगर IASB को क्रिप्टो पे एक नया IFRS या IAS लाना है तो कहाँ से लाएंगे, कुछ तो बेस चाहिए ना पहले। मतलब मैं तुम्हें SBR पढ़ाऊं लेकिन मुझे कुछ तो बेस चाहिए ना, सिलेबस डेफिनेशन होना चाहिए क्या सिलेबस में है, मैं डायरेक्टली SBR कहाँ से पढ़ाना चालू करूं। तो आई हैव द टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक इज द बेस फॉर मी, आई यूज द टेक्स्ट बुक एंड आई स्टार्ट। तो IASB को अगर नया IFRS डेवलप करना है तो बेस कहाँ है, कहाँ देखेंगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। वो लोग देखेंगे पहले तो क्रिप्टो को डिफाइन क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तुम, it is your investment or it is what it is for you, fixed assets है, current asset है, क्या है। तो वो conceptual framework में हमें definition देखना पड़ेगा कि asset का definition क्या होता है। अगर वो definition क्रिप्टो मैच करता है मतलब क्रिप्टो हमारा asset है, ठीक है। फिर asset को recognize कैसे करने का हम देखेंगे, conceptual framework में है कि recognize कैसे करते हैं चीजें बैलेंस शीट या P&L में। Okay, so it is a background, it is a set of theoretical principles. So two things, whenever there is no IAS, IFRS, we can look into conceptual framework and recognize items in books of accounts. Another thing is when IASB wants to develop a new IFRS or IAS, new IFRS rather, तो फिर वो conceptual framework का help लेते हैं। अच्छा, IAS और IFRS में क्या difference है? Anyone remember? Why few numbers are IAS like IAS 16, IAS 37, and few are IFRS 16, IFRS 9? IAS पहले हुआ था, IAS बाद में। पहले IAS हुआ करता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर IASB पिक्चर में आया, IFRS जब नए डेवलप होने लगे, तो अब जो रिसेंट जो डेवलप होते हैं वो IFRS, अब IAS नहीं बोलते। लेकिन कुछ IAS बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से डेवलप किए हुए थे, दे आर स्टिल वैलिड, इसलिए उन्हीं को उन्होंने कंटिन्यू किया। जैसे IAS 16, IAS 37 हो गया, IAS 36, IAS 38, तो they are properly framed till date, there is no need to update them, so they are continued from there, and the new ones which are coming now, they are called IFRS, ठीक है। अब ये सब जब हम क्लास में समझते हैं, हिंदी में डिस्कशन होता है, तो तुमको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है ना, लेकिन जब लिखने पे आता है तो यू पीपल गेट स्टक। सो लिखने के लिए यू हैव टू लर्न थ्योरी, देयर इज नो वे आउट। ओके, कितना भी कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, अगर ये वर्डिंग लर्न नहीं होगा तो यू कांट राइट इन एग्जाम। बट ऐसा तो आएगा नहीं कि व्हाट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, दिस इज लाइक नॉलेज लेवल क्वेश्चन, है ना, तो वैसा क्वेश्चन नहीं आना है हमारे को। A conceptual framework is a set of theoretical principles and concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements. If no framework existed, accounting standards would be produced on a haphazard basis as particular issues and circumstances arose. These accounting standards might be inconsistent with one another or perhaps even contradictory. अब आइडियली देखा जाए तो IAS 16 में भी हम, IFRS 16 लीज में भी हम असेट रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, राइट ऑफ यूज असेट, इफ यू रिमेंबर, है ना, बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज असेट रिकॉर्ड करते थे। IAS 16 के अंदर भी हम असेट रिकॉर्ड करते हैं, फिक्स असेट्स। करंट असेट्स के अंदर भी हम असेट्स ही रिकॉर्ड करते हैं, है ना, IAS 2 इन्वेंट्री, IAS 40 इन्वेस्टमेंट। हाँ, सो असेट का डेफिनेशन तो सेम होना चाहिए ना। IAS 40 बोलेगा मेरे हिसाब से असेट का डेफिनेशन ये है, IAS 16 बोलेगा मेरे लिए ये असेट है ना, IFRS 16 बोलेगा मेरे लिए ये असेट है, तो ऐसा नहीं चलता। कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए सबके बीच के, असेट का डेफिनेशन एटलीस्ट सब सेम फॉलो करो। तो वो असेट का डेफिनेशन कहाँ से आता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। Okay, so without framework, accounting standards might be inconsistent with one another, or perhaps contradictory. A strong conceptual framework means there are principles in place from which all future accounting standards draw. ठीक है, सारे के सारे future accounting standards का base क्या होगा, conceptual framework. It also acts as a reference point for preparers if no accounting standard governs a particular transaction, although extremely rare. अब क्रिप्टो नया आया है, लेकिन क्रिप्टो भी वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिट करेंगे। जनरली इट इज योर इन्वेस्टमेंट,
क्रिप्टो पे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस बार के एसबीआर के एग्जाम में क्रिप्टो पे काफी क्वेश्चन थे, सो इट्स अ हॉट टॉपिक। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इतने में से हम लोग ने क्या सीखा? दो चीजें। One, it is the base for all IFRSs. Whenever IASB wants to develop a new IFRS, conceptual framework acts as the base. Secondly, whenever there is no IFRS for a particular issue, again conceptual framework can be referred to. It is a set of theoretical principles. ये पूरा बैकग्राउंड है कि सबसे पहले कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आया था 89 में। इट्स दैट ओल्ड। ओके, फिर 2004 में कुछ अपडेशंस आए। ओके, बोर्ड मतलब IASB एंड यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मतलब FASB, इन दो बोर्ड्स ने मिलके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को अपडेट किया। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट 89 में से फॉलो किया जो भी था, सिर्फ 2 चैप्टर्स को रिवाइज किया। अच्छा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में 6 चैप्टर्स है। ओके, बट हमको 6 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। हमारे लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1 or 2 चैप्टर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ना, अपने लिए एक ही चैप्टर है बुक में। हमारे लिए जो एक चैप्टर में दिया हुआ है उतना ही याद रखना है। फिर 2010 में बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया, बहुत सारा, क्योंकि कुछ रिवीजन आ गया था, है ना, काफी सिनेरियोस चेंज हो चुके थे। डी रिकॉग्निशन कैसे करने का वो नहीं था, डिस्क्लोजर पे कुछ नहीं था, प्रेजेंटेशन पे कुछ नहीं था, तो ये सब क्रिटिसिज्म था, इसलिए वापस रिवाइज हुआ। सो लेटेस्ट व्हाट हैपेंड, 2012 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 2013 में डिस्कशन पेपर आया, 2015 में एक्सपोजर ड्राफ्ट आया एंड फाइनली 2018 में नया आया। तो मैं 2016 से एसी से पढ़ा रही हूँ। तो जब ये शिफ्ट हुआ था ना 2018 का, जब ये एप्लीकेबल हुआ था एसबीआर सिलेबस में, तब वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते थे कंपैरिजन कि व्हाट डज 2010 conceptual framework say, and in the same scenario now how 2018 we will be applying, क्या चेंज हुआ है 10 से 18 में? नहीं, तुम्हारे लिए अब 18 ही एप्लीकेबल है ना। नहीं, उस समय फिर उनको दोनों पढ़ना पड़ता था ना। हाँ, 10 क्या बोलता है और 18 में चेंज आके क्या चेंज हुआ है, तो वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते थे बीच में, 1-2 साल के लिए वो आए थे। अब तुम लोग के लिए वो कुछ एप्लीकेबल नहीं है, तुम लोग के लिए अभी इट्स लाइक ऑल ये 2018 फ्रेमवर्क, व्हाट वी आर स्टडीइंग इन दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल टू यू। सो अगेन, अगर मुझे तुम एग्जाम वाइज पूछो तो ये बैकग्राउंड में से कुछ लर्न नहीं करना, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज के 89 देन 10 देन 18, ये 3-4 वर्जन्स है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के। पर्पस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस नहीं कर चुके। पर्पस जहाँ पे IFRS नहीं है वहां रेफर करो, नया IFRS बनाना है तो वहां रेफर करो। सो पर्पस इज टू असिस्ट बोर्ड व्हेन डेवलपिंग न्यू IFRS, preparers of FS when no IFRS applies to a particular transaction, all parties when in understanding and interpreting IFRS standard. अगर IFRS कुछ ऐसा complicated चीज बोलता है जो तुम्हें नहीं समझता है, तो भी तुम conceptual framework में जाके देख सकते हो कि बेस क्या बोलता है। Accordingly you can interpret. So 3 पर्पस दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव ये लर्न करना है, एक छोटा सा पैराग्राफ है बट ये लर्न करना है, ये हम लोग FR में भी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ये कर क्यों रहे हम पेपर? Why there is a need for you guys to learn all this? Why are we doing this? है ना, ठीक है। So the conceptual framework states that purpose of financial reporting is to provide information. Balance sheet, P&L, annual report देखो रिलायंस का, तुम्हारे टेक्स्ट बुक जितना एनुअल रिपोर्ट बनता है रिलायंस का, क्यों बनता है, किसके लिए बनता है, व्हाट इज द नीड, है ना। तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू करंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, अदर क्रेडिटर्स that will enable them to make decisions about providing economic resource to an entity. मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ऑफ कोर्स आजकल गूगल पे यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट कंपनी की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज एनुअल रिपोर्ट। सो वो हम ये सब सीख रहे हैं, SBR पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट P&L बनाना होता है। And that is to provide information to current and potential investors because they want to decide whether to invest in the company or not. Lenders want to decide whether to give money to the company or not. Other creditors because they want to make decisions about providing economic resources to an entity.
तो तुम्हारा SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। अच्छा देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR में what is why the difference in the name, why it is FM and advanced FM, PM and advanced PM, it is not FR and advanced FR, why? क्योंकि FR था वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे फोकस था। बैलेंस शीट P&L में नंबर्स कैसे कैलकुलेट करने तुमने उतना ही सीखा और कुछ नहीं सीखा FR में। It is strategic business reporting. Here, your focus is not on financial reporting. Your focus is on business reporting, that too strategic. जिन्होंने SBL किया है उनको strategic word का meaning अच्छे से पता है ना? So what is strategic? Strategic is something related to very senior level of management, where majority of decisions relating to direction of the company are taken. है ना? तो ये strategic business reporting है. Balance sheet P&L is just one small part of SBR. Otherwise, this paper we are studying from stakeholder perspective. Investors को क्या report चाहिए, investors को क्या information चाहिए, वो information. Sorry. No, stakeholders. क्योंकि गवर्नमेंट को भी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतना ही इंटरेस्ट होगा, एम्प्लॉइज होंगे, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, योर इन्वेस्टर्स, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन योर एनुअल रिपोर्ट. सो व्हेन यू मेक एनुअल रिपोर्ट, फोकस इज नॉट ओनली ऑन बैलेंस शीट एंड P&L, बहुत सारी चीजों पे फोकस होता है. तो ना बैलेंस शीट P&L बनता ही इन्वेस्टर के हिसाब से, लेंडर के हिसाब से, कि उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए. Okay, so that's why it is not advanced FR, it is SBR, strategic business reporting. Okay, तो ये ऑब्जेक्टिव का एक पैराग्राफ लर्न करना है. If investors, lenders, creditors are going to make these decisions, then they require information that will help them to assess. क्यों चाहिए? Now this is very simple. Lender और creditor को पता करना होगा कि future cash flow कंपनी के पास आने वाला है, मुझे मेरा repayment मिलेगा या नहीं मिलेगा. Whether management is honest enough to handle the resources, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है. हमने बोला लेंडर्स को फ्यूचर कैश फ्लो असेस करना होता है कंपनी का, ताकि उन्हें पता चले रीपेमेंट मिलेगा कि नहीं. लेकिन वो लोग कैसे असेस करेंगे? एनुअल रिपोर्ट में ऐसी क्या चीज मिलेगी उनको जिससे उनको पता चलेगा कि फ्यूचर कैश फ्लो आने वाला है कि नहीं आने? क्या क्या देखोगे तुम एक कंपनी के बैलेंस शीट P&L में या एनुअल रिपोर्ट में, ताकि तुम्हें पता चले कि कंपनी के पास आगे जाके कैश फ्लो है या नहीं? रिसीवेबल्स, ओके, रिसीवेबल्स, लेंडर होगा कोई, रिसीवेबल का बैलेंस देखेगा कि रिसीवेबल से पैसा कितना आने वाला है, अग्रीड. देन तुम लोग बैलेंस शीट P&L तो पता है ना क्या क्या आता है. बैंक बैलेंस ऑफ कोर्स, कैश कितना है, एग्जिस्टिंग कैश कितना है, वो तो देखेंगे ना. तुम अगर लेंडर हो किसी कंपनी के, तुम बैंक हो या तुम क्रेडिटर हो, तुम्हें पता करना है कंपनी को लोन देना है नहीं देना है, क्या क्या देखोगे उसके बैलेंस शीट P&L में? सो श्रेयन सेड वन. Ma'am, हाँ बोलो अवन. I'm not sure, but maybe going concern. Going concern status, okay, you will see the going concern status, but how? तुम बैलेंस शीट P&L देख के कैसे पता करोगे कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है? We can probably see how much overdraft they have already taken, maybe from other banks, So and if they'll be able to repay that. एग्जिस्टिंग बोरोइंग कितना है और कितना कैपेसिटी है बोरोइंग लेने का, है ना? Yeah. गोइंग कंसर्न, ओके, दैट इज वन वे ऑफ असेसिंग द गोइंग कंसर्न ऑफ एन एंटिटी. ठीक है. कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे एक तो, है ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा कि कैश आ कहां से रहा है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आना चाहिए आइडियली, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से नहीं आना चाहिए. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लोगे. ठीक है. बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं ना, नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स कितने सारे डालते हैं. वो डिस्क्लोजर्स और नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे कि हो क्या रहा है. ठीक है. सो ऑल दोज आर द वेज. सो टू असेस एन एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज, users need information about assets, liabilities, equity, income, expenses. ये तो तुम्हारा बैलेंस शीट और P&L हो गया, and plus all other what we discussed. ठीक है. This is summary what we'll be studying in the full chapter.
Now we come to qualitative characteristics of useful financial information. These are very important. ये हम लोग ने FR में भी पढ़ा था डिटेल में. अगर तुम बैलेंस शीट P&L बना रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? एक तो रेलेवेंट होना चाहिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एंड कंपेरेबल. कंपेरेबल क्या होता है? दो चीजें होती है कंपेरेबिलिटी में. एक तो तुम्हारा बैलेंस शीट तुम्हारे ही बैलेंस शीट के साथ ईयर ऑन ईयर कंपेरेबल होना चाहिए. इस बार तुमने इन्वेस्टमेंट करंट असेट में दिखा दिया, फिर नेक्स्ट ईयर तुम वही इन्वेस्टमेंट निकाल के फिक्स असेट्स में डाल देते हो, तो कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी भी नहीं होगी प्रेजेंटेशन में. ओके, सो कंपेरेबिलिटी एक तो ईयर ऑन ईयर, दूसरा इंडस्ट्री में तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेरेबल होना चाहिए. बट to achieve comparability within the industry is difficult. हो सकता है तुम अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए FIFO फॉलो करते हो, कोई और वेटेड एवरेज फॉलो करता है. So achieving that comparability is little difficult unless you know industry wise there is a trend prevalent के ये इंडस्ट्री में इन्वेंट्री FIFO से ही वैल्यू होता है, तो सारी कंपनीज अगर करती है. Timeliness, whatever said and done, balance sheet P&L is historical. It shows what is gone. Okay, कुछ पुराना बैलेंस शीट P&L होता है. वेरीफाइबिलिटी क्या होता है? Knowledgeable users should be able to agree that a particular depiction of a transaction offers a faithful representation. अगर तुमने कोई इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स में दिखाया है और उसके रिलेटेड थोड़ा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है, तो वो नोट्स पढ़ के ना कोई भी ऑडिटर, कोई भी CA ये बोलना चाहिए कि ओके, इफ दिस इज द डिस्क्रिप्शन, then categorization of investment under current assets is correct. So verifiable होना चाहिए तुम्हारा information and understandable. Understandable कब होगा? जब simple होगा, concise होगा, बहुत detailed नहीं होगा, खिचपिच नहीं होगा, technical language कम होगा, है ना? तो ये चारों तो बहुत easy है समझना. Comparability, timeliness, verifiability and understandability. We come to relevance. Relevance में दो तीन चीजें हैं. Relevance requires management to consider materiality. So सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होता है जो मटीरियल होता है. 10 रुपए का रिलायंस के बैलेंस शीट में कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, इट्स इममटीरियल, है ना? तो सबसे पहले रेलेवेंस मतलब कभी भी पूछा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मटीरियलिटी. सेकेंड, an item is material if omitting, misstating or obscuring it would influence economic decisions of users. Now this is the technical part of relevance which needs to be learned by heart, है ना? ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा डेफिनेशन रेलेवेंस का. कोई भी, अगर मैं अपने बैलेंस शीट में कोई इंफॉर्मेशन डालती हूँ तो वो इन्वेस्टर पढ़ के इंप्रेस हो जाएगा और वो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा. बट वही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग होगा ना, तो इन्वेस्टर को गलत पिक्चर दिखेगा और वो इन्वेस्ट नहीं करेगा. मतलब दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट. व्हाई? बिकॉज ओमिटिंग इट और मिसस्टेटिंग इट impacted the economic decision of the user. तो ऐसा जो भी डिटेल जो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इम्पैक्ट करता है वो रेलेवेंट होता है. तो एक मटीरियलिटी, और मटीरियल वो होता है which is omitting or misstating will impact the economic decision of the user. Now faithful representation में क्या होता है? 4-5 चीजें. यहाँ पे दो चीजें, materiality, and what is material? Obscuring or omitting or misstating would influence the economic decision of user. Faithful representation में एक होता है substance over form. Anyone remembers any example of substance over form? किसी को कुछ याद है? Substance over form का क्या एग्जाम्पल होगा? What do we mean by substance over legal form? देखो क्या होता है substance over legal form में. Let's assume कि ये जो क्लास में मैं अभी बैठी हूँ, this class is owned by AKs. Ideally we are on rent. The premises are on rent. But let's assume के ये मेरा खुद का जगह खरीदा हुआ है, मुझे अभी पैसे की जरूरत है. मैं बैंक में जाऊंगी, बैंक को बोलूंगी कि I want to sell this building, sale and lease back. Okay, sale and lease back. We'll study that in the coming chapters. So ideally, I'm selling the business, this thing to bank, and I'm taking it back on lease. है ना? Legally क्या हो रहा है? या फिर
सेल एंड लीज बैक नहीं बोलते, सेल विथ अ राइट टू रीपर्चेस, के आगे जाके मैं ये बिल्डिंग 3 साल के बाद वापस बैंक से खरीद लूंगी। ओके ऐसा करते हैं, मुझे लोन चाहिए, बैंक को जाऊंगी, बेचूंगी, बैंक मुझे पैसा देगी, बट आई हैव द राइट, आई डोंट हैव द ऑब्लिगेशन, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, आई हैव द राइट टू बाय द बिल्डिंग बैक इफ आई वांट टू, इफ आई वांट टू आई हैव द राइट। 3 साल बाद अगर मुझे बिल्डिंग वापस खरीदना है तो बैंक को मुझे देना ही पड़ेगा। तो अब देखो इस केस में क्या होता है, हाँ हाँ सेल एंड रीपर्चेस, हाँ अग्रीमेंट वैसा ही बनेगा, नहीं पड़ेगा, आई हैव द राइट, इफ आई डोंट वांट आई कैन नॉट। तो बैंक के लिए वो ऑब्लिगेशन है कि अगर मैं वापस खरीदने जाऊंगी तो बैंक को मुझे बेचना ही पड़ेगा। ओके सो सेल एंड रीपर्चेस अग्रीमेंट, आई हैव द राइट, आई हैव द ऑप्शन बेसिकली खरीदना। तो इस केस में क्या है, एक तो 3 साल बाद मुझे खरीदने का राइट है, तो मतलब बैंक तो उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकती, बैंक बेच नहीं सकती, बैंक किसी को आगे कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि 3 साल के बाद अगर मैं बैंक के पास जाऊंगी तो मुझे बेचना ही पड़ेगा। दूसरा मेंटेनेंस मेरे मत्थे, इंश्योरेंस मेरा काम, रिस्क कुछ हुआ बिल्डिंग को तो वो भी मेरे पास ही है। तो आइडियली देखा जाए ना तो लीगली मैंने बैंक को बिल्डिंग बेच दिया है, बट सब्सटेंशियली मेरे पास ही है। So this is substance over legal form. Will I be able to de-recognize such a building from my balance sheet? No, I cannot. ठीक है, it will be shown as my asset only. So this is legal form में कुछ भी हो, substantially क्या होता है? Another example is lease. हम जब कोई asset lease पे लेते हैं तो हम लेसी अपने बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज असेट दिखाता है ना, आइडियली तो मैंने रेंट पे लिया है असेट, तो मैं क्यों दिखा रही हूँ असेट, लेकिन फिर भी लीगल रिस्क मेरे पास है, बिल्डिंग मैंने लीज पे लिया हुआ है 20 साल के लिए, कुछ हुआ बिल्डिंग को तो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इट इज एज गुड एज माय असेट, नॉट लेसर्स असेट। लेसर क्या दिखाता है, रिसीवेबल दिखाता है कि मुझे पैसा मिलने वाला है ना, असेट कौन दिखाता है अपनी बैलेंस शीट में, मैं दिखाती हूँ राइट ऑफ यूज असेट। तो लीगल फॉर्म में ही इज द ओनर, बट आइडियली आई एम यूजिंग द असेट। सो बैलेंस शीट, मेरे बैलेंस शीट में असेट दिखेगा, सो दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ना वही बोलता है कि आप लीगल फॉर्म के इस पे मत जाओ, लीगली कुछ भी हो रहा हो आप बुक्स में वही दिखाओ जो सब्सटेंस में हो रहा है, जो एक्चुअल रियलिटी में हो रहा है। Okay, so now don't forget what is substance rather than its legal form. Okay. दूसरा होता है तुम्हारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए, न्यूट्रल मतलब फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए। ओके, इफ दिस इज नॉट फुल्ली अचीवेबल दिस शुड बी मैक्सिमाइज्ड। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में दूसरा होता है प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब असेट्स और इनकम को ओवरस्टेट नहीं करने का, लायबिलिटी और एक्सपेंस को कम नहीं दिखाने का। ओके, डू नॉट ओवरस्टेट योर असेट्स एंड इनकम, डू नॉट अंडरस्टेट योर एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज, जो है वही दिखाओ। सो प्रूडेंस इज दैट। Prudence means assets and income are not overstated, liabilities are not understated, and expenses. However, this does not mean that asset and income should be purposefully understated. So basically, जो जैसा है वैसा दिखाओ, ना ज्यादा दिखाओ ना कम दिखाओ। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या है, एक है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड, whatever information you present that should be complete, neutral, free from error, and third, prudence. ठीक है, ओके। Enhancing characteristics हमने पढ़ लिया। Cost constraint. When developing IFRS, board assesses whether benefits of reporting particular information outweigh the cost involved in providing it. कोई भी नया IFRS आता है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता ही है। मतलब तुम 10-10 रुपए 20-20 रुपए का इंफॉर्मेशन के लिए पब्लिक को प्रेशराइज नहीं कर सकते। इट डजंट आउटवे द बेनिफिट, है ना। तो इसका एक एग्जांपल क्या दिया इन्होंने, IFRS 16 which replaced IAS 17 leases। तो पहले क्या था, IAS 17 लीज था, अपडेट होके आया IFRS 16। radically changed lessee accounting by requiring all lessees to recognize an asset। यही अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि जो रेंट पे लेता है वो एक्चुअली असेट दिखाता है अपने बैलेंस शीट में, and liability at the inception of lease। However, IFRS 16 did not change the accounting treatment of leases by lessors. This was because most stakeholders did not believe that requirements relating to lessors in IAS 17 were broken. So IAS 17 was perfect as far as lesser accounting was concerned. There were loopholes in lessee accounting, so only that part was updated. Unnecessary खर्चा नहीं करने का।
The perceived time and cost involved in implementing substantial changes to lesser accounting was therefore believed to outweigh any benefit. लेसन होता है वो भी अपने अकाउंट में उसको एसेट शो करता होगा। रिसीवेबल दिखाता है, उसको रेंट मिलने वाला होता है ना, हाँ तो वो रेंट रिसीवेबल दिखाता है। नहीं, अब लोग जब लीज पढ़ेंगे तो लेसर अकाउंटिंग देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले भी लेसर अकाउंटिंग नहीं एफआर में लेसर अकाउंटिंग नहीं है, एफआर में सिर्फ लेसी अकाउंटिंग है, लेसर अकाउंट एसबीआर में आता है। ये सब याद करने के लिए इसमें से क्या क्या याद करना? रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, यस लर्न करना पड़ेगा। ओके, रेलेवेंस कभी भी पूछे तो 2-3 मार्क में लिखने आना चाहिए, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे ना तब तुम लोग को समझेगा कि डायरेक्ट थ्योरी नहीं आता है, इट इज एप्लीकेशन बेस्ड, जहां पे हमें कहीं कहीं पे ये कोट करना पड़ता है। Now financial statements and the reporting entity. अब यहाँ पे ये डेफिनेशंस है, असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है, सो लेट्स सी वन बाय वन। ये रिपोर्टिंग एंटिटी वी जस्ट हैव टू रीड वंस, इसमें क्या लिखा है मैं वो तुम्हें समझा देती हूँ। एक इन्होंने बोला है कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किधर गया वो, इधर ही है ना, हाँ ये रहा। ठीक है, एक इन्होंने बात करी है कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड यू ऑल नो एंड वी विल लर्न आल्सो, पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप होता है तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनता है। कंबाइंड क्या होता है? दो एंटिटीज के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, फिर भी वो अपना बैलेंस शीट P&L कंबाइन कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं। आई डोंट नो why even they have included it. So financial statements produced for 2 or more entities that are not parent and subsidiary, they are combined financial statements. ठीक है, बट हमारे सिलेबस में ये नहीं है। We don't know what is combined and we don't know when combined is to be prepared. This is out of the syllabus. Consolidated we have, we'll study in detail when the consolidation comes. Now these are the definitions which are to be again learned by heart. Asset का definition देखो, जब हम IS 16 पढ़ेंगे ना, वहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। जब हम लीज पढ़ेंगे वहाँ पे राइट ऑफ यूज असेट का डेफिनेशन दिया हुआ है। जब हम IS 40 इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है। असेट का डेफिनेशन कहीं नहीं है। असेट का डेफिनेशन कहाँ है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके, ठीक है, सो ये डेफिनेशन, a present economic resource controlled by an entity as a result of past event। 3-4 चीजें हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स, कंट्रोल्ड, पास्ट इवेंट। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब जैसे पैसा आएगा, इनकम आएगी, बेनिफिट आएगा, है ना। इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए तुम्हारा असेट कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, अपने कंट्रोल में होना चाहिए। डू यू ऑल रिमेंबर व्हेन कैन वी से दैट वी कंट्रोल समथिंग? कंट्रोल का भी डेफिनेशन होता है। The benefits and losses, something like that, are ours only. Rewards or Risk and reward. The risk and rewards are ours. We can restrict other party from getting the rewards. And one more was there, but I forgot now. Yeah. So ये ना IFRS 15 में भी आता है कंट्रोल का डेफिनेशन। When of course you can direct the use of the asset. तुम्हें asset use करना है करो, तुम्हें idle रखना है रखो, तुम्हें बेचना है बेचो, तुम्हें तोड़ना है तोड़ो। You have the right to direct the use of the asset, है ना। Then you have all risk and rewards, the ownership, risk तुम्हारा, reward तुम्हारा, benefit तुम्हारा। You have the right, you have the ability to prevent other parties getting any benefit from your asset. Okay, कोई और तीसरी पार्टी तुम्हारे asset का benefit नहीं ले सकती। You, if someone does that, you can stop them. You have the right, you have the ability. ठीक है, so all these are the things हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वापस, but control is this। तो पहली चीज रिसोर्स होना Ma'am? चाहिए। यस, ये मुझे याद है पहले जो था they had put it as owned ना, उसके बाद उन्होंने चेंज किया from asset का definition from owned to controlled। हाँ हाँ, वो पुराना Right? कंसेप्चुअल था। हाँ, यस, पुराने हाँ। में own था, right? हाँ, सो पुराने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे अब हम नहीं जाएंगे। नाउ वी हैव टू स्टिक टू द लेटेस्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये डेफिनेशंस थोड़े बहुत चेंज हुए थे। ठीक है, सो एक है इकोनॉमिक रिसोर्स, सो सम मॉनेटरी बेनिफिट,
control as a result of past event. You must have entered into an agreement to buy the asset or something like that. Liability पूरा का पूरा उल्टा definition है. It is an obligation. है ना, ये तुम्हारा obligation है of the entity to transfer the economic resource. मतलब तुम्हें लाइबिलिटी की होती है, हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है, या तो तुम्हें कैश देना है, सामने लोन रीपे करना है, तुम्हें क्रेडिटर्स को पैसा देना है, टैक्स पे करना है. सो देयर इज सम ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. क्रेडिटर के लिए पास्ट इवेंट मस्ट बी यू बॉट गुड्स, है ना, बैंक से लोन लिया है. व्हाट इज इक्विटी? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ एन एंटिटी. जो भी बचा कुचा है वो इक्विटी. इनकम नहीं, इतना ही है. रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी. कभी भी कंपनी, इक्विटी का डेफिनेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू, कभी भी कंपनी शट होती है, बंद होती है, वाइंड अप होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो पहले सारे क्रेडिटर्स, बैंकर्स को पैसा मिलेगा. जो बचा कुचा रेसिडू होगा वो इक्विटी को लास्ट में मिलेगा. इसीलिए रेसिडुअल इंटरेस्ट बोलते हैं, बचा कुचा. ओके. Income is increase in asset or decrease in liability. How? Tell me. Income से asset increase होगा या liability decrease होगी? How? कोई भी एक income पकड़ लो ना, कोई भी एक income पकड़ लो. Any income in your mind, how it will? Debtors is your asset, not income. P&L से कोई भी इनकम पकड़ लो, असेट कैसे बढ़ेगा इनकम से? कैश आएगा. इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट देगी तो हमारा कैश बढ़ेगा, तो असेट बढ़ा ना. सो इनकम का डेफिनेशन इसलिए इन्होंने बोला है इधर इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी. हाउ इनकम विल डिक्रीज इन लायबिलिटी? इनकम विल डिक्रीज आवर लायबिलिटी, पे ऑफ करेंगे उसमें से. ठीक है, इंटरेस्ट में से कैश है, वो कैश होगा यूज लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए. सो इनकम इज ईदर इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी. अल्टीमेटली तुम्हारा इनकम पीएनएल में बुक होता है, तुम्हारा पीएनएल किधर जाता है? रिटेन अर्निंग में इक्विटी बढ़ता है ना, उससे हर साल का प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ेगा. एक्सक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इक्विटी होल्डर्स. जो इक्विटी होल्डर से कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर इश्यू करते हैं हम, जब आईपीओ लाया उससे पैसा आया, वो इनकम थोड़ी होगा. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया ना, वो पीएनएल में थोड़ी दिखता है, वो बैलेंस शीट में दिखता है ना, कैश डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, वो इनकम नहीं होता. एक्सपेंस का डेफिनेशन इनकम का एकदम उल्टा, डिक्रीज इन असेट, क्योंकि जब जब तुम पे करोगे तुम्हारा कैश कम होगा तो असेट कम होगा. और इंक्रीज इन लायबिलिटी, परचेज एक्सपेंस इनकर किया तो लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिटर्स आया, है ना, दैट रिजल्ट इन डिक्रीज टू इक्विटी. और एक्सपेंसेस से हमारा प्रॉफिट कम होगा, इक्विटी कम होगा. ये डिस्ट्रीब्यूशन में तो डिविडेंड आएगा. डिविडेंड, बट डिविडेंड पीएनएल में नहीं आता ना, फिर वो एक्सपेंस नहीं होता, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. वो पीएनएल में बुक नहीं होता डिविडेंड इक्विटी का, इसलिए एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो बाकी क्या बचा? अगर तुम असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, ये 5 चीजें हटा दो तो कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ये डायरेक्टली इक्विटी में रिपोर्ट होते हैं. Statement of changes in equity. Exchange of assets and liabilities that do not increase or decrease equity. होता है ना, ये asset के बदले काफी बार exchange में दूसरा asset आ गया, so that exchange. Now economic resource का इन्होंने definition दिया है, right that has the potential to produce economic benefits. So economic resource उसको बोलते हैं जहां से कुछ economic benefit आता है. ठीक है. So this was, all these were the definitions of asset, liability, equity, income and expense. These definitions are to be, देखो keywords आने चाहिए. अब keywords याद करने जाते हो तो it is as good as कि पूरा definition ही learn हो जाता है ना. So it is not word to word mugging up. You can write in your own words, but keywords होने चाहिए. Keywords missing है तो marks पे impact. It's 11 o'clock. Let's take a 10 minutes break. Today we'll wind up class early at 45. Because it's my first FR class also. Tomorrow onwards, we'll have class 10 to 12. Let's take a 10 minutes break. We'll start again at 11:10. Okay?
Let's start, guys. So now next we have recognition and derecognition. Now recognition, this is very, very important. ये ना एग्जाम किट के बहुत सारे क्वेश्चंस में है. Each and every IFRS has their own recognition criteria. IAS 16 लीज पकड़ लो, 37 पकड़ लो, टैक्स पकड़ लो, हर एक IFRS के अपने अपने recognition criteria होते हैं, लेकिन conceptual framework के भी recognition criteria. अब तुम बोलोगे मैम सारे तो IFRS फॉलो करने होते हैं, फिर conceptual framework का recognition criteria यूज किधर होगा? तो एग्जाम पर्पस के लिए हमारे एग्जाम्स के लिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ना कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि IAS 16 क्या बोलता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या बोलता है, एंड आर दे बोथ इन लाइन विद ईच अदर और दे आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स एंड whom to follow. So IFRS always prevails over conceptual framework. मैं फॉलो तो IFRS ही करना है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहे कुछ भी बोल ले. तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है ये पूरा तुम्हें लर्न करना है. Items are only recognized in FS if they meet the definition of one of the element. Element क्या था? ऊपर 5. Asset, liability, income, expense, equity. तो conceptual framework बोलता है तुम बैलेंस शीट में कोई भी आइटम नहीं डाल सकते जब तक ये 5 डेफिनेशन में से एक के अंदर कवर नहीं होता. कोई भी आइटम पकड़ लो P&L बैलेंस शीट का, ये 5 का डेफिनेशन जब तक कोई एक डेफिनेशन मीट नहीं होता तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. So first and foremost thing in conceptual framework is it should meet the definition of one of the elements. ठीक है? Now elements are element का definition, asset का definition fulfill हो गया तो record कर देंगे ऐसा? नहीं. उसके आगे second step है. Elements are recognized if recognition provides users with faithful information. In other words, recognition must provide relevant information and faithful representation of asset, liability, income, expense or equity. तो दो चीजें हैं. पहले एलिमेंट का डेफिनेशन मीट होना चाहिए, एनी वन एलिमेंट. सेकेंड, एलिमेंट का डेफिनेशन एक बार मीट हो गया तो उसको रिकॉर्ड करने से you should give relevant information and a faithful representation. ऐसा हम लोग को देना होगा. ठीक है. Recognition might not provide relevant information if there is uncertainty over the existence of element or if there is a low probability of an inflow or outflow of economic resources. अब ये प्लीज समझो क्या बोल. ठीक है. उसने क्या बोला? तभी recognize कर सकते हैं when you are confident कि recognition is giving relevant information to the users. अब इसने दो सिनेरियो बताए हुए हैं जहां इट विल नॉट प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. ओके, कहां? इफ देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. तुम्हें कोई इनकम रिकॉर्ड करना है, अब वो इनकम मिलने का चांसेस ओनली 10%. मतलब 10% श्योरिटी है कि इनकम आने वाला है, तो तुम P&L में इनकम दिखा दोगे? एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नो. हाँ, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी. देखो अब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? एलिमेंट का डेफिनेशन हो गया, चलो इनकम का डेफिनेशन मीट हो गया. सेकेंड स्टेप हमें देखना है वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कब होगा वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने नहीं बताया, वो ऊपर बता दिया. रेलेवेंस, मटीरियलिटी एंड स्किपिंग समथिंग impacts the economic decision of user. रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कब नहीं होगा उसके लिए उसने हमें दो चीजें दी है. एक, जब probability of receipt of the income is low, है ना? तो अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एग्जाम में कि entity A is supposed to receive interest income but the probability of receiving the income is 10%, whether this thing can be recorded or recognized as per conceptual framework, 5 marks. 5 marks में क्या लिखोगे? तुम्हें 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट्स या कंटेंट तो देना पड़ेगा. तो इस आंसर को ना 5 मार्क्स में हम कैसे लिखेंगे? तो हम तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे पूरा. एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, आइटम हैज टू मीट द डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट. नाउ बिकॉज दिस इज आवर रिसीट, we have done something whatever is given in the question, so it meets the definition of element, which is income. Now another recognition criteria in conceptual framework is item element can be recorded when the information provided is relevant and faithfully represented. Now it is given in the scenario that the probability of receipt of income is only 10%, so it is a very low probability. And
recognizing an item with such a low probability will not give any relevant information. Okay, so when relevant information is not given as per conceptual framework, we cannot recognize this element. तो ये तुम्हारा 5 मार्क्स का ऐसा डिस्क्रिप्शन हो गया. तो रीजनिंग कहाँ से आना है? एसबीएल में रीजन खुद का ढूंढ के लाना होता था, है ना. यहाँ पे रीजन खुद से नहीं लिख सकते. यू डोंट हैव अ फ्री हैंड टू राइट एनीथिंग. योर रीजनिंग हैज टू कम फ्रॉम टेक्निकल कंटेंट. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में से रीजनिंग आना चाहिए. तो ये तो अभी मैंने इस पे इतना एम्फेसाइज क्यों किया, क्योंकि ऐसा एग्जाम किट में क्वेश्चन है ना, जहां पे कहीं तो कुछ दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी 10% है. सो एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. व्हेन देयर इज लो प्रोबेबिलिटी, इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर द यूजर्स. दूसरी चीज इसमें क्या दी है? We might not provide relevant information if there is uncertainty over the existence of element. मतलब वो एलिमेंट एग्जिस्ट, एलिमेंट का डेफिनेशन मीट हो गया, असेट है हमारा, लेकिन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो अनसर्टेनिटी. मतलब अब ये फिजिकल एसेट में पॉसिबल नहीं होगा. बिल्डिंग है, मेरे नाम पे है तो है, मे बी इंटैंजिबल्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है एग्जाम के. अजीब सा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर एग्जाम सिनेरियो में आता है तो तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट, इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. तो तुम्हारा जो रीजन है ना, जो लॉजिक है, वो टेक्स्ट बुक में से ही आना चाहिए. तुम खुद का कोई रीजन नहीं लिख सकते, तुम्हें टेक्निकल कंटेंट से रिलेट करना ही पड़ेगा. तो अब जैसा इसने दिया है कि दो एग्जांपल्स दिए हमें जहां इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं होगा. एक जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीट इज वेरी लो और प्रोबेबिलिटी ऑफ पेमेंट इज वेरी लो. एंड सेकेंड थिंग, व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट. तो ये दो चीजें जब होगी ना, तो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं होगा. एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हम आइटम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, भले वो एलिमेंट का डेफिनेशन मीट कर रहा है ना. So meeting the definition of element is not the only criteria. After meeting the definition, when you are recognizing, it should give some relevant information and it should be faithful representation. अब जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट के लिए पढ़ा कि कब रेलेवेंट नहीं होता, वैसे सेकेंड पॉइंट के लिए भी करना पड़ेगा कि कब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता. ओके, ये आगे कहीं दिया हुआ है, मैं कवर कर लेती हूँ. ये रहा. Recognition of an element might not provide faithful representation if there is a very high degree of measurement uncertainty. है ना. तो अब measurement uncertainty क्या होता है? जब तुम उसको measure ही नहीं कर पा रहे. मतलब तुमने बिल्डिंग खरीद लिया, अब बिल्डिंग इकोनॉमिक रिसोर्स है, तुम्हें बेनिफिट मिलने वाला है, तुम कंट्रोल भी करते हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट भी है, मतलब एलिमेंट का डेफिनेशन तो मीट कर लिया. लेकिन बिल्डिंग को मेजर कैसे करूं? हिस्टोरिकल मेथड करूं या रिवैल्यूएशन करूं, वो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही. क्यों? क्योंकि मेरे पास प्राइस ही अवेलेबल नहीं है. मैंने फ्रेंड से खरीदी है, फ्रेंड ने बोला 1-2 महीने के बाद देख लेंगे प्राइस क्या लगाना है. सो हाई डिग्री ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी. मैं करूं मेजर तो कैसे करूं, है ना. आई डोंट हैव द फिगर. क्या? हाँ, तो वही ना, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी नहीं. एलिमेंट का डेफिनेशन तो मीट कर दिया ना, मेरे नाम पे एसेट आ गया, मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, मुझे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया. लेकिन क्योंकि फ्रेंड से खरीदा है, बोला 2-3 महीने में देख लेंगे कि क्या प्राइस डिसाइड कर रहे हो, अभी तक प्राइस ही डिसाइड नहीं हुआ. किसी ने गिफ्ट किया है बाय एनी चांस. देखो, गिफ्ट किया तो अभी तुम फेयर वैल्यू पे तो मेजर कर ही सकते हो. हाँ, लेकिन फेयर वैल्यू भी अगर नहीं ढूंढ पा रहे, मतलब देयर इज हाई डिग्री ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी. तो जब इतना हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, मेजर नहीं कर पा रहे, तो फिर वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और इसलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं. तो अब तुम्हें क्लियर हुआ कि व्हाट इज रेलेवेंस, व्हाट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और किन किन सिनेरियो में ये दो चीजें फुलफिल नहीं होंगी. रेलेवेंट के लिए उन्होंने 2 एग्जांपल दिए, फिर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये एक इंफॉर्मेशन दिया है. नाउ ऑल दीज थिंग्स नीड जजमेंट, है ना. रेलेवेंट है या नहीं है वो डिसाइड करना, जजमेंट यूज करना हुआ ना. सो जजमेंट इज रिक्वायर्ड इन डिसाइडिंग इफ recognition is appropriate or not. This is why specific recognition criteria vary from one IFRS standard to another. If an asset or liability is not recognized,
then disclosure देना पड़ता है. Disclosure may be required to ensure. तो तुम ऐसा disclosure दोगे कि we have bought this building but the price is still not certain. That is why we are unable to recognize it in our financial statements. तो वो clarification explanation देना पड़ेगा. क्यों? Because users want to fully understand the reporting entity's economic transactions and implications that these might have on future earnings and future cash flows. ठीक है, तो ये पार्ट, ये recognition part बहुत important है. Example देख लेते हैं. IS 37 provisions prohibits recognition of contingent liabilities and assets because it is not probable that resources will flow from or to the reporting entity. अभी तुमको शायद याद नहीं होगा, लेकिन IS 37 में वो टेबल होता था 0 to 50%, तो remote chances of payment, so don't recognize because it is low probability. Possible था और probable था. Probable मतलब more than 50% chance कि pay करना पड़ेगा. तो इसलिए, so from this what we can say that IS 37 and conceptual framework are in line with each other. They both say the same thing. है ना? उधर भी IS 37 बोलता है अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कम है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है. कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आता. कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम डिस्क्लोज करते हैं बाय वे ऑफ अ नोट. तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी तो वही बोल रहा है, लेकिन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का रीजनिंग अलग है. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलता है कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी अगर इतना कम है तो that will not be a relevant information, and because it will not be relevant we will not recognize. Okay, but to that extent IS 37 and conceptual framework are in line with each other. तो कभी एग्जाम में ये कंपैरिजन पूछते हैं IS 37 और conceptual framework का, तो you should be clear कि they both say the same thing. Let's see this. अब ये तुम्हें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बट देखते हैं कितना याद है. जितना याद है उसके बेसिस के हिसाब से ये कर सकते हो क्या आंसर. लेट्स डू TYU 1. बॉटल ऑपरेट्स इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री. ठीक है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री, बुक्स पब्लिश करते हैं हम शायद. बॉटल ब्रांड is highly respected, and as a result books published by Bottle receive extensive coverage both online and in national and international press. ठीक है, तो ब्रांड की बात चल रही है, but this brand is internally generated and in accordance with IS 38 intangible assets this is not recognized in these financial statements. अब ये तुमको कितना याद है, IS 38 बोलता है कि internally generated brands cannot be recognized in balance sheet as a brand. Why? First thing first, let's discuss the reason. ये डिस्कशन अभी हो रहा है, जब IS 38 में वापस ब्रांड का डिस्कशन आएगा that time I'll not do. Okay? हाँ. Because वो like we can't, no one is paid anything ना उसके लिए. It is generated good sale, but no one has paid it of like खरीदा हुआ नहीं है. Exactly. So we can't specify कि जैसे भी land का बात चल रहा है. ठीक है. So what Shreyan said is correct. What Shreyan said is we have not paid the price and purchased it. It is internally generated. So I always give the example of AKS. AKS का भी balance sheet बनेगा. Now AKS is a brand in the market, right? लेकिन वो brand internally generated है ना. हम स्टूडेंट्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ाते अच्छा है, इसलिए वो ब्रांड डेवलप हुआ है मार्केट में, राइट? लेकिन वो ब्रांड को मैं बैलेंस शीट में वैल्यू देने जाऊं तो क्या वैल्यू दूं? एंड इंटरनली जनरेटेड ब्रांड के पीछे बहुत सारी चीजें जाती है. मे बी द इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी द कस्टमर केयर, maybe the relation with the students and our teaching style, the pass rate. There are many things. मैं हर एक का price decide करके club करके brand का value कैसे लगा सकती हूँ? मैं नहीं लगा सकती. It is very difficult to differentiate between your operating cost and your brand development cost. है ना? जो operating expenses तो मैं बहुत सारी चीजों के लिए incur कर रही हूँ ना, ठीक है? So IS 38 बोलता है internally generated brand cannot be recognized in books. अब तुम लोग को मैंने conceptual framework का recognition criteria पढ़ाया ना, अब वापस टेक्स्ट बुक रेफर करो और तुम ये क्वेश्चन मुझे आंसर करो. Discuss the extent to which accounting treatment of bottle brand is consistent with conceptual framework. मतलब IS 38 बोलता है internally generated brand cannot be recognized.
Does conceptual framework also say the same thing? If yes, then give me the reasoning from what we studied from the book. तो लॉजिक क्या है कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ये IS 38 बोलता है. तुम अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लगा लो, जो मैंने तुम्हें अभी इतना एक्सप्लेन किया, तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा? ये ब्रांड रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? व्हाई? If yes, why? If no, why? I have to get the reason from the textbook. So those who do not have the books, I'll keep. But how do I keep this open? Because you have to read the full recognition. मैंने ग्रुप पे बुक्स शेयर किए हैं, सब लोग बैकग्राउंड में अपने बुक्स खोल लो. I'll wait. I'll give you all 5 minutes. ये recognition criteria सारा का सारा टेक्स्ट पढ़ो, ज्यादा नहीं है, यहाँ से लेके यहीं तक है. और मुझे बताओ under which point you will land up recognizing or not recognizing the internally generated brand. Okay, so I'll give you 5 minutes to reason out. And this is the first step towards preparing yourself for this practice. Over the 2 months, we will be doing this. तुम्हें मुझे reason देना पड़ेगा और वो यहाँ से आना चाहिए. First line, page 10 का. Page 10 का first line क्या? वही है, study. What? This one? Yes. High degree of measurement uncertainty, है ना? We cannot measure the brand which is internally generated. So now Shreyans has given out the answer. Recognition of element. So recognition of this brand will not provide faithful representation as per CF because there is a high degree of measurement uncertainty. तो अब तुम्हें पता चला, तुम जो भी SBR में आंसर लिखोगे, जो भी आंसर दोगे, वो तुम्हारा टेक्निकल कंटेंट से ही आना चाहिए. ओके, ठीक है. सो नाउ लेट्स रीड द आंसर टू दिस TYU. फ्रेंड्स, मुझे आंसर का पेज नंबर बताओगे? 23 इसमें. 23. I want someone. Shreyans, read the answer. Look at if this question comes for 5 marks. कैसे लिखोगे? This can come for 5, but no, this is super easy. ऐसा नहीं आ सकता, लेकिन 5 marks के आते हैं questions. Okay, yeah, read. The brand is an economic resource controlled by bottle. It has the potential to bring economic benefits because of the exposure that bottle branded books receive. Despite meeting the definition of an element, the brand is not recognized in the financial statements. However, the conceptual framework states that elements should only be recognized if this provides relevant information or a faithful representation of the asset or liability. If there is a high degree of measurement uncertainty, then recognition may not provide a faithful representation. The cost of an internally generated brand cannot be reliably measured. This is because the cost of setting up and developing the brand cannot be separated from the operating cost of the business. The fair value of a brand is also very difficult to determine because brands are unique. Thus, it would seem that the accounting treatment of the brand for the IAS 38 intangible assets is consistent with कंसेप्ट. ठीक है, तो पहले इन्होंने ऊपर क्या किया? एलिमेंट का डेफिनेशन. ठीक है, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दिया कि या तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए या फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और फिर रीजन दिया. ठीक है, एंड रीजन को एक्सप्लेन किया कि इंटरनली जनरेटेड असेट को हम मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, एंड देयरफॉर बोथ conceptual framework and IS 38 both say the same thing. They are consistent with each other. ठीक है, so this is how questions will be examined, but this is very easy.
सो ये हमने पढ़ा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब डी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कब कौन सा आइटम बैलेंस शीट में से निकालना चाहिए, डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए बुक्स में से, एंड व्हाई। So what is derecognition? Derecognition is the removal of some or all of an asset or liability from SOFP. This normally occurs when entity loses the control of the asset, है ना? जब कंट्रोल चला जाएगा तो asset को derecognize करना पड़ेगा। बिल्डिंग बेच दिया, कंट्रोल सामने वाली पार्टी के पास चला गया, और has no present obligation for the liability, या हमें liability अभी पे ही नहीं करनी, तो डीरेकॉग्नाइज कब करेंगे? जब असेट के ऊपर से कंट्रोल चला जाएगा या लायबिलिटी पे नहीं करनी पड़ेगी। काफी बार होता है ना कि रिस्ट्रक्चरिंग होता है तो लायबिलिटी कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है वैसा, और वंस यू हैव पेड ऑफ इट डिफरेंट, लाइक देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग आल्सो, है ना? या फिर तुमने ऑलरेडी पे कर दी, अब कोई ऑब्लिगेशन बचा ही नहीं है, ठीक है? तो ये तो इजी है, जब लायबिलिटी पे कर दो या असेट बेच दो तो वो असेट और लायबिलिटी डायरेक्ट। लाइक आई रेड दिस कि एक फर्म है उसने अपने इन्वेस्टमेंट को डीरिकॉग्नाइज कर दिया बिकॉज़ it feels that उसका वो पोटेंशियल नहीं है। So what Shreyans is saying, he read somewhere के एक एंटिटी ने अपने बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट डीरिकॉग्नाइज कर दिया because they felt now there is no potential, like वो वैल्यू वापस नहीं मिलेगा हमें, है ना? तो अगर तुमने रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे 100 पे और अब रिलायंस के शेयर्स चले गए 9-10 पे, मीनिंग इट इज एज गुड एज गॉन, तो डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, बिकॉज नाउ यू कैन नॉट सी एनीथिंग कमिंग फ्रॉम दैट। Accounting for derecognition should faithfully represent the changes in an entity's net assets as well as any assets or liabilities retained. This is achieved by derecognizing any transferred, expired or consumed part, recognizing gain or loss on above and recognizing any retained component. अब ऊपर वाला बड़ा इजी था, पूरा का पूरा asset बेच दो तो derecognize कर दो, पूरी की पूरी liability पे कर दो तो derecognize कर दो। यहाँ पे ना पार्ट में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द asset, मतलब तुमने असेट बेचा भी है नहीं भी बेचा है, जो बेच दिया पार्ट उस पे लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, जो रिटेन्ड पार्ट है वो अपने बैलेंस शीट में ही रहेगा, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे सेल एंड लीज बैक में। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस पार्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड नाउ। वो जो सेल एंड लीज बैक, तुम यहाँ पे सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक में इतना मेंशन कर सकते हो, एग्जाम्पल सेल एंड लीज बैक। जब सेल एंड लीज बैक पढ़ेंगे ना तब ये चीज क्लियर हो जाएगी। काफी बार ऐसा लीगली लगता है कि हमने असेट बेच दिया है, लेकिन ना सब्सटैंशियली सारे रिस्क रिवॉर्ड हमारे पास ही होते हैं, तो फिर हम डीरेकॉग्नाइज नहीं कर पाते। सो समटाइम्स एन एंटिटी माइट अपीयर टू हैव ट्रांसफर्ड द असेट और लायबिलिटी, however derecognition is not appropriate if exposure to variations in elements economic benefits is retained। तो उस केस में क्या होता है, वो असेट का ना दो पार्ट में डिवीजन होता है, मतलब बिल्डिंग दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी अकाउंटिंग वाइज, बुक्स में आधा असेट मेरे इधर दिखेगा, आधा असेट किसी और के बैलेंस शीट में दिखेगा, वैसा। ओके, वी derecognize the part that has been transferred and we keep recognizing the part which we have retained. Asset we sold and we have a repurchase agreement, but we just have the repurchase agreement and उन लोग जो है जो बैंक है सपोज उन्हीं का रिस्पांसिबिलिटी है मेंटेनेंस वगैरह, तो फिर तो सारा अगर बिल्डिंग जल गया कुछ हो गया तो बैंक का रिस्पॉन्स, फिर तो वो बैंक का असेट हुआ, मेरे पास तो कंट्रोल हुआ ही नहीं। बट वी कैन बाय आफ्टर 3 years। तो फिर उस केस में ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पार्ट रिटेन हुआ है और कितना पार्ट पेपर पे, लाइक हाउ मच रिस्क बैंक इज अज्यूमिंग एंड हाउ मच रिस्क वी आर अज्यूमिंग। लेकिन मुझे प्रैक्टिकली बताओ श्रेयंस, अगर तुम बैंक को मैं तुम्हारे पास आती हूँ कि मुझे लोन चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट रीपर्चेस वाला करते हैं, तो प्रैक्टिकली बैंक कहाँ तक मानेगी कि तुम्हें आगे जाके खरीदना है, तो मैं काहे को रिस्क लूं ना, फिर तुम्हें लोन की जरूरत है, तुम मेरे पास आए हो, तो मैं क्यों रिस्क फेस करूं? या इट इज काइंड ऑफ दैट अग्रीमेंट ओनली कोलेटरल फॉर अ लोन, है ना? तो प्रैक्टिकली वो चीजें बहुत ट्रिकी होती हैं और बहुत रेयर सिनेरियोज होते हैं जहां पे ऐसा होता है। ओके, ठीक है। तो ये डीरेकॉग्निशन था। तो डीरेकॉग्नाइज कब करेंगे? जब असेट बेच देंगे या लायबिलिटी पे ऑफ कर देंगे। काफी बार पार्ट में होता है, पार्ट का एग्जांपल इज सेल एंड लीज बैक, दैट विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी कम टू द चैप्टर। अब ये वही एग्जांपल है जो थोड़ा बहुत जो हम डिस्कस कर रहे थे। लेट्स सी,
An entity sells a building for 2 million and retains the right to buy it for 3 million in 5 years time, है ना? हम अभी बेच कितने में रहे हैं? 2 मिलियन में, और हम वापस खरीदेंगे कितने? 3 मिलियन में। मतलब अभी हमने बेचा है, बैंक हमको देगी 2 मिलियन, और जब हम बैंक, तो हमें बैंक दे कितना रही है? 2 मिलियन। When we go to repurchase and how much we give to the bank? 3 million। मतलब बैंक का क्लियर कट वो 2 मिलियन पे 1 मिलियन इंटरेस्ट हो गया ना। बैंक ने हमें दिया 2 मिलियन, हम बैंक को दे रहे हैं 3 मिलियन, मतलब वी आर रिटर्निंग 2 मिलियन विद इंटरेस्ट। वी हैव द राइट टू रीपर्चेस। ओके, at the date of the sale the building had a fair value of 7 million। अब तुम मुझे बताओ, तुम जो बिल्डिंग बेचने जा रहे हो उसका फेयर वैल्यू 7 मिलियन है, तुम पागल हो? तुम उसको बैंक को 2 मिलियन में बेचोगे? It's just a loan by keeping it as a security or something. The wording used is sale, but it's actually not a sale, because ये सेल आर्म्स लेंथ प्राइस पे है ही नहीं। $7 मिलियन का बिल्डिंग में क्यों बैंक को 2 मिलियन में बेचूंगी ना? Because I want to retain the building. The intention is building मेरा ही रहना चाहिए, मुझे बस पैसे की जरूरत है। प्रॉपर्टी प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। आगे जाके 3 साल के बाद, अभी फेयर वैल्यू 7 मिलियन है, 3 साल के बाद 8-9 मिलियन हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू लूज दैट वैल्यू, नो अपॉर्चुनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? एंटिटी डज नॉट डीरेकॉग्नाइज द बिल्डिंग फ्रॉम इट्स SOFP। एंटिटी हैज नॉट लॉस्ट कंट्रोल ओवर द बिल्डिंग बिकॉज, रीजन क्या है? इट्स एबिलिटी टू बाय द बिल्डिंग बैक for substantially less than the fair value enables it to benefit from future price। और अगर 3 साल के बाद बिल्डिंग का प्राइस 8-9 मिलियन होने वाला है, तो बैंक पागल बैठी है मुझे 3 मिलियन में बेच देगी। So this is not actual sale transaction, this is just taking loan by keeping building as a security. The wording, the naming is different, that the entity sells the building. That doesn't mean we have to go by the what is written, ठीक है? The cash received would be recognized as a loan liability। तो हमें जो बैंक अभी 2 मिलियन देगी ना, वो हम ऐसा एंट्री पास नहीं करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अब हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। बिल्डिंग तो हमारे बुक्स में रहेगी, वो हम क्रेडिट नहीं करेंगे, वो हम डीरेकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अच्छा, SBR में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टफ बाय जर्नल एंट्रीज। तुम्हें हर एक चीज का ना जर्नल एंट्री पास करने आना चाहिए। तो जितना तुम जर्नल एंट्री, जितना तुम मुझे क्लास में पूछोगे कि मैम जर्नल एंट्री क्या होगा, कैसे होगा, उतना तुम्हारा बेनिफिट है। ओके, सो SBR का मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्राई टू स्टडी थ्रू जर्नल एंट्रीज टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ठीक है, तो वो एक पार्ट, 3-4 पार्ट एक्चुअली खत्म किए हम लोग ने। एलिमेंट्स का डेफिनेशन देखा, फिर हमने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखा, हमने डीरेकॉग्निशन देखा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मेजरमेंट। तो अगेन हर एक IFRS IAS का अपना मेजरमेंट क्राइटेरिया होगा। जैसे IAS 16 बोलता है हिस्टोरिकल या रिवैल्यूएशन मेथड। They have given us the criteria when historical can be used, when revaluation can be। IAS 37 प्रोविजन कैसे मेजर करना है, वो IAS 37 ने हमको बताया है। बट अगर कहीं कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने भी बताना चाहिए कि मेजरमेंट कैसे होता है। So elements must be quantified in monetary items. CF outlines 2 broad measurement bases. एक historical cost, एक current value। current value के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। fair value, value in use, current cost। fair value क्या है? जो मार्केट में वैल्यू होता है वो। value in use क्या होता है? value in use is a very important term in SBR। what is value in use? हमने FR में पढ़ा था, किसी को अगर याद है तो। Value in use, how do we calculate? How do we calculate? What is value in use? When we go to sell the asset, how much we will get in the market? That is fair value. Okay, that thing is fair value. Price received or paid in the open market for buying an asset or settling a liability, that is fair value. Value in use हमने पढ़ा था IAS 36 impairment में। उसको ताकि वो इम्पेयर हो गया, बट स्टिल वो कितना और प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसकी तरफ से बात। So value in use का one liner definition is present value of all the future benefits expected from an item। अगर तुम्हारी मशीन है, मशीन तुम और 5 साल यूज करने वाले हो,
5 साल में machine will produce 1 lakh units, you will sell those units. So you know present value of all future, उस सब का 5 साल चलने वाली है मशीन, 5 साल में आगे कितना मॉनेटरी वैल्यू आने वाला है, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू आज निकालो, दैट इज योर वैल्यू इन यूज. अच्छा, वैल्यू इन यूज कहाँ यूज होता है? जहां ना असेट्स यूनिक होते हैं और फेयर वैल्यू नहीं मिलती. वो ऐसा असेट नहीं है जो मार्केट में बार बार रेडिली ट्रेड हो रहा है. ये बिल्डिंग का फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? ये 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, विदाउट लिफ्ट है, बाजू में अभी रिसेंटली ऐसा एक बिल्डिंग बिका था 1 करोड़ में, तो वी कैन टेक सिमिलर असेट्स का. ये भी 3 फ्लोर है, विदाउट लिफ्ट है. हाँ, एक डिफरेंस है कि वो बिल्डिंग 10 साल पुरानी थी, ये बिल्डिंग 30 साल पुरानी है, तो उतना उसका वैल्यू हम अकॉर्डिंगली थोड़ा कम कर देंगे, बट वी कैन फाइंड फेयर वैल्यू. ठीक है ना? बट ऐसे यूनिक असेट्स जिनका फेयर वैल्यू, अब इस बिल्डिंग का क्यों मिला मुझे फेयर वैल्यू? क्योंकि मार्केट में इसके जैसे और असेट्स हैं, है ना? लेकिन कोई यूनिक असेट है जो मार्केट में यूनिक है, तुम्हारे लिए ही है, सिर्फ तुमने बनवा के लिया है, तो ऐसे का फेयर वैल्यू तो मिलेगा. हाँ, पेटेंट वगैरह हो गया, ऐसे का फेयर वैल्यू नहीं मिलता. फिर ऐसे का वैल्यू इन यूज निकालना पड़ता है कि तुम्हें एज अ एंटिटी तुम कितना बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो इस असेट में से. तो ये असेट मेरे पास 10 साल के लिए रहने वाला है, हर साल मुझे इतना इनफ्लो मिलेगा, तो मैं वो सारे इनफ्लोज का आज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लूंगी, वो मेरे असेट का वैल्यू. ओके, सो दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज. Again, we'll study value in use in detail, how to calculate and all in IS 36 impairment. Current cost is kind of replacement cost. Replacement cost इस बुक में आएगा, but let me tell you what is replacement cost. तुम एक 2 व्हीलर पकड़ लो, एक्टिवा. Let's assume एक्टिवा, हमने आज एक्टिवा बिजनेस के लिए खरीदा 80-90,000, I don't know the price, but let's assume 80-90,000 में एक्टिवा मिल रहा है. अब वो एक्टिवा मैंने 2 साल यूज कर लिया, 2 साल डेप्रिशिएट कर लिया, ठीक है, मेरे पास उसका बुक वैल्यू होगा. अब मुझे वो एक्टिवा का मार्केट वैल्यू निकालना है, तो आज अगर मैं 2 साल के बाद मुझे एक और एक्टिवा खरीदना है, तो वो एक्टिवा अगर मैं मार्केट में खरीदने जाऊंगी, मुझे कितने में मिलेगा? वो तुम्हारा फेयर वैल्यू होगा. सपोज 2 साल पहले तुमने 80 में खरीदा, आज के डेट पे 90 हो गया, दैट 90 इज फेयर वैल्यू. व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज तुमने जितना टाइम असेट को यूज किया है, उतने ही टाइम के लिए वो नए वैल्यू को डेप्रिशिएट करोगे. तुमने 80 में लिया था असेट, उसको 2 साल यूज कर लिया, डेप्रिसिएशन के बाद तुम्हारे पास एक बुक वैल्यू है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी, आज मार्केट में जाओ, आज खरीदो एज इन कितने में मिल रहा है? 90 में, और उसको उतने ही सालों के लिए डेप्रिशिएट क्यों करो जितना टाइम तुमने अपना एक्टिवा को यूज किया, तो 2 साल. ठीक है, तो 2 इयर्स के लिए हम वो 90,000 को डेप्रिशिएट करेंगे, जो हमें कॉस्ट मिलेगा ना, वो रिप्लेसमेंट. मतलब आज के डेट में मैं 2 साल पुराना एक्टिवा खरीदने जाऊंगी, तो मुझे इतने प्राइस में मिलेगा. दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. आज के डेट में मैं 2 साल पुराना एक्टिवा मार्केट से खरीदने जाऊं, ऐसा एक्टिवा जो 2 साल किसी ने यूज किया है, तो वो मुझे अप्रोक्सीमेटली उतने प्राइस में मिलेगा. हाँ, या मैं उतने में बेचूंगी, ठीक है, या खरीदूंगी या बेचूंगी, अल्टीमेटली दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. So replacement cost जब term आता है, तो what is the difference? That it is depreciated for the same number of the years for what you have already used the asset. Okay, got it? So conceptual framework के हिसाब से कोई भी asset measure करने के लिए 2 चीजें यूज कर सकते हैं, या तो historical cost या current value. Current value में या तो तुम fair value ले लो, fair value available नहीं है तो value in use, या फिर किसी asset के केस में replacement cost. Okay. How to select a measurement base? ठीक है. So मुझे बताओ, selecting a measurement base. Now how do we decide कि हमें historical cost यूज करना है या current value यूज करना है, current value के अंडर भी कौन सा यूज करना है? How to decide? अब ऐसा वाला क्वेश्चन ना शायद एग्जाम किट में है कहीं पे, जहां तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि असेट को मेजर कैसे करना है, या इसी में है. आई थिंक बुक में ही एग्जाम्पल है. Let's see. The information provided to users by the measurement base must be useful. In other words, it must be relevant. Same चीज है. Conceptual framework में आइटम को कब recognize करते हैं? जब relevant information देता है और faithful representation होता है. Same चीज measurement base कैसे करोगे? अगर तुम्हें लगता है historical cost select करने से ज्यादा relevant information दे रहे हैं, तो उसको select करो.
ठीक है. When selecting a measurement basis, conceptual framework states that relevance is maximized if the following are considered. तो वहां पे जैसे दिया था ना हमें 2 पॉइंट के कब रेलेवेंट नहीं होगा, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दिए कि कब रेलेवेंस मैक्सिमाइज होगा. The characteristics of asset or liability, the ways in which asset or liability contribute to the future cash flows. इस पे क्रिप्टो का क्वेश्चन we'll read. Okay, but it's already 45. So we'll do the theory part of it and this example, then we'll continue tomorrow. अगर तुम्हारा असेट ऐसा है जिसका वैल्यू मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट होता है, ऐसा, अब ये बिल्डिंग का वैल्यू क्या ही फ्लक्चुएट होगा, 8-10 साल 20 साल में कितना फ्लक्चुएट, लेकिन अगर कोई ऐसा असेट है जैसे टेक्नोलॉजी, कोई सॉफ्टवेयर ले लो, उसका वैल्यू तो फ्लक्चुएट करेगा, नया टेक्नोलॉजी आया कि इसका वैल्यू गया. सो अगर कोई ऐसा असेट है जिसका वैल्यू ना बहुत फ्लक्चुएट होता है मार्केट में, तो ऐसे असेट को फेथफुली रिप्रेजेंट कैसे करोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट विल बी अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और रिवैल्यूएशन मॉडल विल बी अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. व्हाट विल बी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऐसे असेट के लिए? Revaluation. Why, Hiral? Because it's frequently changing. तो आप past का जो लोग है वो relevant होगा ही नहीं, क्योंकि आपको current के साथ as and when जो होगा वो change करना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली मेन वर्ड क्या आया? रेलेवेंस. जिस असेट का वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, हम उसको अपने बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे अगर, तो फिर वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे होगा? हमारे बुक्स में वैल्यू अलग और मार्केट में वैल्यू एकदम ही अलग. होना क्या चाहिए कि तुम्हारे बैलेंस शीट में जो असेट दिखते हैं उनका वैल्यू मोर और लेस मार्केट से सिमिलर होना चाहिए, है ना? So it will not be a relevant thing. So relevance is maximized when you see the characteristics of the asset. This asset has got a characteristics where market value is continuously fluctuating. Iman, you want to say something? No, ma'am. ठीक है, okay. हाँ, selecting a measurement base. We'll do the example tomorrow. ठीक है, right now I want to stop. Tomorrow onwards we'll take the class till 12. But so SBR will be like this only. You will have to understand everything in very detail, है ना? Very much detail. क्योंकि जब तक तुम्हें वो डिटेल में समझेगा नहीं, तब तक तुम एग्जाम किट के क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाओगे. So it is very important that every day you revise what we have studied. Try to learn the text. Okay? Try to learn the text as much as possible. So tomorrow we'll meet at same time, 10 o'clock. Any questions? No, ma'am. Okay. Recording will be available in another half an hour time, so you all can watch the recording. Okay. Bye everyone. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.